लिंक सबको भेज दी। कृष्णा अच्छा हाय कृष्णा। Hi Krishna, you are there? Krishna Gopal, you are there? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, good evening. Yes, yes. Yes. Can you send a link in the WhatsApp group? Yes, sir, I'll do that. Only very few people are there. Krishna, how are you doing? So any breakthroughs? Yes, sir. एक्चुअली हमने कुछ किसानों के साथ काम किया था। Okay. तो उसका कुछ बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है और जो हमने किसान को सजेस्ट किया था क्रॉप साइकिल, और वही क्रॉप साइकिल हमने इंडस्ट्री को भी सजेस्ट किया। तो इंडस्ट्री के सामने प्रॉब्लम हो रहा था कि फार्मर को प्रॉपर क्रॉप साइकिल नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि तो उनके का प्रोडक्टिविटी सफर कर रहा था। तो जिसके कारण इन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि आपका दिया हुआ क्रॉप साइकिल परफेक्ट है और बहुत मैच करता है। तो फार्मर को एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा पर्टिकुलर मेडिसिनल और एरोमेटिक का क्रॉप साइकिल, कंप्लीट क्रॉप साइकिल के कारण उनके इनकम इनहांस होगा। और प्रॉपर रिजल्ट, और इस बार डेमोन्स्ट्रेशन करके भी हमने दिखाया है। और वो भी कॉमर्शियल लेवल पे। कौन सा क्रॉप्स अभी के लिए लिया है? सर अभी तुलसी स्टार्ट किए हैं। आपका फरवरी से तुलसी, और तुलसी का हम 2 कटिंग लेंगे, उसके बाद अश्वगंधा। यदि तुलसी का हम सिंगल कटिंग लेते हैं तो तुलसी के बाद कालमेघ, और कालमेघ के बाद फिर अश्वगंधा। कंप्लीट क्रॉप साइकिल। तुलसी के जगह हम सेना भी कर सकते हैं, भुई आंवला भी कर सकते हैं। जी। और अभी कुछ आपका गैप भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कल्टीवेशन के साथ साथ ही। गैप सर्टिफिकेशन ना? यस सर। जो फार्मर रेडी हो रहे हैं क्लस्टर बेस मॉडल पे, क्योंकि इंडिविजुअल फार्मर के साथ काम करने के साथ साथ हमने एफपीओ के साथ काम करना शुरू किया। तो एफपीओ में हम लोग असिस्ट कर रहे हैं गैप सर्टिफिकेशन के लिए, और उसमें हम लोग खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यदि कोई ऑर्गेनिक वे में कल्टीवेशन कर रहा है तो उसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि फार्मर को कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। Even gap also farmer need not have to pay, no? So it is only the government will give. लेकिन सर डॉक्यूमेंटेशन में यस सर, डॉक्यूमेंटेशन में उनको प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ। जी। Dr. Kole, good afternoon. Dr. Madam Pooja. Good afternoon, sir. Good afternoon. To see you back again. Yeah. So what is the progress? Any breakthroughs? We have, yes, sir. We have actually given a token amount. We are for a piece of land. So waiting for the legal clearance, and hopefully at least by March end, the next financial year, we'll be able to start something. I'll be reaching out to you. We're just waiting for that. And then once we know where we are, maybe we'll also, like you suggested earlier, we look at leasing out. That's what we were thinking also once.
Okay. So in one age, so that area specific, then you can monitor everything together rather than. Yeah. That is true. So we're just looking at that too. Today we are having with us Mr. Krishna Gopal. Yeah, I think my screen is visible. It is visible. Okay. So yeah, this is again a pre-webinar discussion we can have for some time because the number is low. So we will get at least 50 participants in this this one, and then we will start. This is pre-webinar discussion that we can have. We have Krishna is there with us. Yes. If anyone want to interact with him, you can do that one. So today's topic is again this cultivation and the primary value addition of medicinal and aromatic plants for enterprise development. So this is again a vast scope for enterprise development is possible with a number of medicinal plants. So through cultivation. So cultivation can be organic or GAP certified cultivation, organic cultivation, or some other means of cultivation also you can take up. And here the primary value addition again, it is again you are growing through organic, that itself is a value addition. After growing anything for that matter, if you are going for GAP certification, Good Agricultural Practices certification is also one of the value addition. Then after value addition, the other value additions can be post-harvest management, drying. Then you have to have packing or labeling. Some other things also can add value to your product. So in that way, in this webinar, we will be discussing on various aspects of cultivation in that way, on different means of cultivation. It's not like something food crops and other things where you can straight away go for cultivation. Here, the cultivation needs to be linked up with the end users. So unless you do the linking up with end users either through contract farming or through some nexus, so otherwise it is not, so you are not successful in doing the business of medicinal and aromatic plants cultivation. Right. So in that way, it is quite important that we should have this kind of linkages. And so this webinar we are organizing through our MediHub Technology Business Incubator, which is again, we are there to help all the young entrepreneurs, budding entrepreneurs who want to venture into this field and have some kind of enterprises in this field. So our achievement is that we are having around more than 15 incubators working on various aspects of this medicinal and aromatic plants enterprise development. And today Krishna is also our incubator, who is again, who will be talking to us and sharing his experience, who is working with the industries, big industries, and also linking up that demand with the farmers. So farmer-centric approaches. He does a lot of contract farming. He gives services of contract farming and also value addition of produce. So in that way, so we will be benefited with this lecture that what are all the crops that we can go for contract farming in medicinal plants, and how to go about with that, and how to manage the risks that is going to come across in the whole process of value chain. So all these things we can discuss, and I think Deepa, we can start now, or we have 19 participants, or I think so I welcome all of you to this webinar. Again, this webinar is again 19th such webinar program, which is on cultivation and primary value addition of medicinal and aromatic plants for enterprise development. Our core speaker is again Mr. Krishna Gopal Singh, who is again the director and CEO of Vishwakanya Hub Private Limited, Ghaziabad. And so we are with us, so Dr. Deepa Patel will be there, who will be highlighting how MediHub can help you
in converting your idea into business. And also I will be there. I am Dr. Reddy, looking after this whole the show. And if you have any questions, even after the webinar also, you can try to reach to me so that we can help you in doing the things possible. So with this brief introduction, now I request Dr. Deepa to introduce our speakers. Over to you, Deepa. Thank you. Thank you for the opportunity, sir. Good afternoon, one and all. Today's topic, as we know, cultivation and primary value addition of medicinal and aromatic plants for enterprise development. And the speaker for today is Mr. Krishna Gopal Singh. It is my immense pleasure to introduce him and to give some glimpse of his journey. Sir Krishna Gopal sir, he belongs to small town of Bihar, that is Sitamarhi, and has done his graduation in DSW in the year 2010, and he has gradually understood that to work with farmer is his passion, and he has collaborated with many institutes like CSRI, DMAPR, etc. And he's now currently working with more than 1,000 farmers across India, and he's working with more than 8 states of India. Currently, he's very much active in Bihar, Jharkhand, West Bengal, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Karnataka. So, and again, not limited to that, he's very much open to work with more states and to serve them with his expertise. He shall show us some and will throw some focus on importance of growing medicinal plants for today's session, and some more focus on demand of medicinal plants. And he has developed so much good crop cycles which are very much fit to the industries. So he would be discussing all those tactics of cultivation into medicinal plant sectors, and he'll also discuss some package and practices, and overall his journey and experience of being into this medicinal and aromatic plant segments. So again, we are very much thankful for this affirmative note that you'll be able to deliver the lecture today. And wholeheartedly we welcome you, Mr. Krishna. You can start your presentation now and start interacting with our participants for today's talk. Yeah, Krishna, you can go ahead. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Ma'am, PPT share कर सकती हैं? Hold on. Okay, I'll do that. So participant can use a chat box to raise questions so that we can straight away discuss questions after the Q&A session. Yeah. And the screen is visible? Yeah, visible, Deepa, go ahead. The slides are moving as well? Yeah, go ahead. Okay. Yes, Mr. Krishna, you can talk and you can guide me to slide this presentation. Okay, sir. Okay, thank you. विश्वकृष्णा हर्ब्स एंड एरोमेटिक कंपनी का स्थापना, यदि प्राइवेट लिमिटेड फर्म की स्थापना आपको 2000 His voice is not coming, Deepa. तो hello, Mr. Krishna, yeah. Can you restart your thing? Okay, go ahead. And use mix and match of both the languages, English. Okay, ma'am, thank you. Yeah. So विश्वकृष्णा हर्ब्स की शुरुआत 2021 में हुई थी. जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था, जो प्रॉब्लम ऑफ फार्मर को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन देना. हम लोगों ने देखा कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बहुत सारा है फार्मर के साइड से और इंडस्ट्री के साइड से भी. तो प्रॉब्लम जो पैन इंडिया के फार्मर फेस करते हैं वो आपका फ्लड है, ड्रॉट है, एनिमल अटैक है. मैम स्लाइड को मूव करते रहिएगा.
You can say next. नेक्स्ट ओके Okay. नेक्स्ट स्लाइड में स्लाइड दिख नहीं रही, नॉट ओपन स्लाइड, नॉट डिस्प्ले स्लाइड। Okay, go ahead. सो जो बेसिक प्रॉब्लम हमने देखा कि फ्लड ड्रॉट का प्रॉब्लम है, जिसके कारण यदि आप देखेंगे स्टैटिकल डाटा आप देखेंगे तो इंडिया का 45% जो कल्टीवेटेड लैंड की मैं बात करूं, 45% कल्टीवेटेड लैंड इनटू फ्लड। अब फ्लड के कारण ह्यूज लॉस होता है, सिर्फ फार्मर का ही लॉस नहीं होता है, नेशन का भी लॉस होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट सफर करते हैं, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यदि प्रोडक्शन होगा तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो एक मेजर प्रॉब्लम ये था। साथ में ड्रॉट का प्रॉब्लम, 42% लैंड ड्रॉट कंडीशन में है, तो ड्रॉट के कारण सेम कंडीशन, तो ये इसके कारण जो मेजर प्रॉब्लम है फ्लड ड्रॉट, जो लीड करता है माइग्रेशन की तरफ, क्योंकि जब फार्मर को इनकम नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, खेती छोड़ेंगे, खेती छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक माइग्रेट करेंगे दूसरे लोकेशन की तरफ। तो एक तरह का इनबैलेंस क्रिएट हो रहा था अर्बन एरिया और रूरल एरिया में, और फार्मर अपना कल्टीवेशन छोड़ रहे थे। तो इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया कि क्रॉप सिलेक्शन की बात आई थी, कौन सा क्रॉप सिलेक्ट किया जाए। तो हमने देखा कि बेस्ट क्रॉप क्या हो सकता है, तो हमें लगा मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप बेस्ट क्रॉप है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसको अब प्रॉब्लम हमने देखा कि किस एरिया में क्या प्रॉब्लम है, उस एरिया के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन देना शुरू किया कि पर्टिकुलर क्रॉप आप एक ग्रो करो। जैसे अब फ्लड इफेक्टेड एरिया है तो उसमें नागरमोथा, बच, वेटिवर को हम लोग कहें कि नहीं आप एक क्रॉप लगाओ, जिसके कारण है कि फ्लड यदि आपको पर्टिकुलर 2 दिन के लिए हो या 10 दिन के लिए हो तो लॉसेज नहीं होंगे। जो लो लैंड वाला एरिया है, जो ड्रॉट कंडीशन है, उसमें लेमन ग्रास, जो एरोमेटिक क्रॉप, कुछ आपके हर्ब्स भी हैं जिसमें कालमेघ, तुलसी, अश्वगंधा, गूगल, इसबगोल, ये ड्रॉट कंडीशन में भी सरवाइव करते हैं और ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। और हमारे देश में हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी बहुत ज़्यादा है, लीची है, आम है, साइट्रस है, तो उसके लिए भी हमने कहा कि नहीं कुछ क्रॉप हैं जो एडिशनल इनकम दे सकते हैं। तो उसमें हमने टर्मरिक, जिंजर, अश्वगंधा, शताब्दी को प्रमोट करना शुरू किया, तो जिसके कारण ये हुआ कि फार्मर का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई होते हुए सॉल्यूशन मिला, क्रॉप मिला, तो उनके लिए परफेक्ट होता चला गया। नेक्स्ट स्लाइड। Deepa, can you able to move the slide? Yeah. Yes, I moved it. Okay. तो हमने हेलो Yes, Deepa. Go तो ahead. अब है कि फार्मर के पास है कि भाई मेडिसिनल एरोमेटिक न्यू क्रॉप है फार्मर के लिए, तो फार्मर कल्टीवेशन के लिए आगे नहीं आया। तो हमने क्या किया कि एक अप्रोच अपनाया कि बैकवर्ड अप्रोच अपनाया, जिसमें हम लोग पहले मार्केट क्रिएट करते हैं कि पर्टिकुलर क्रॉप का मार्केट है या नहीं, उसके बाद मार्केट के अकॉर्डिंग उसको क्रॉप आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्रॉप आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम लोग फार्मर को ट्रेनिंग देते हैं कि ट्रेनिंग में कैसे कल्टीवेशन किया जाए, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और ट्रेनिंग के बाद हम लोग उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मूव करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मूव करने के बाद हम लोग यदि एरोमेटिक क्रॉप है तो प्राइमरी प्रोसेसिंग की तरफ मूव करते हैं कि प्राइमरी प्रोसेसिंग कैसे हो। हर्ब्स में भी प्राइमरी प्रोसेसिंग होता है, तो उसको कैसे किया जाए, क्योंकि कुछ जगह मैकेनिकल यूज होता है, कुछ जगह क्योंकि लो कॉस्ट पे कैसे हम ह्यूज क्रॉप को प्राइमरी प्रोसेस कर पाए। तो इस सब का हमने ट्रेनिंग देना शुरू किया, सर्विस देना शुरू किया। जो फार्मर हमारे साथ जुड़े होते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होता है। बाकी फार्मर जो नहीं है तो उनको हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे सर्विस देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा इंग्लिश भी यूज कीजिए इन ओके मैम, ओके। तो इस कल्टीवेशन प्रोसेस में वी आर क्रिएटिंग इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट, जो मेजर इम्पैक्ट हम लोग, जो सोशल इम्पैक्ट है, एज ए सोशल वेंचर वी आर क्रिएटिंग सोशल इम्पैक्ट। तो जो सोशल इम्पैक्ट क्या है कि वी क्रिएटिंग फार्मर सेंट्रिक इकोसिस्टम।
तो फार्मर सेंट्रिक इकोसिस्टम में आप ये कहते हैं कि बहुत सारी चीजें चाहिए कल्टीवेशन के लिए, पैकेज एंड प्रैक्टिस, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, रेगुलर मॉनिटरिंग, तो हम लोग वो देते हैं। और सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ाते हैं। फार्मर हैव नीड ए सिंगल पॉइंट वेयर ही कैन गो फॉर ऑल द सर्विसेज, बिकॉज अभी आप देखेंगे तो भाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से लेना है, तो जाइए DPMR से बात कीजिए, CMAP से बात कीजिए, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो फार्मर हैव नॉट इनफ टाइम टू इंटरेक्ट विद एवरी इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उसमें कॉस्ट लगता है। फार्मर कहता है छोड़ो क्या करना है, नॉर्मल क्रॉप। तो जब हम लोग इसके साथ में फार्मर का जो प्रॉब्लम, जो एवरेज इनकम अलग अलग लोकेशन में हमने आइडेंटिफाई किया, इस बिटवीन 5,000 to 20,000 ईयर पर एकड़, विच इज द लोएस्ट इनकम आप कह सकते हैं। तो जब हमने मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया करने के बाद फार्मर का इनकम डबल हो गया, क्योंकि मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप जो इनकम देता है 40,000 to 70,000 पर एकड़ पर ईयर, फ्रॉम 1 acre he can earn this much money. तो अब है कि वी प्रमोटेड इंटरक्रॉपिंग इन द ऑर्चर्ड, टर्मरिक, जिंजर, सर्पगंधा, शताब्दी। एक टर्मरिक को इंट्रोड्यूस करने के कारण एक बेनिफिट हम लोग को नजर आया कि ऑर्चर्ड का जो पेस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट है वो 40% तक डिक्रीज कर गया, क्योंकि टर्मरिक हैव एंटी फंगल प्रॉपर्टी, तो जिसके कारण ऑर्चर्ड में पेस्ट कंट्रोल कम हो गया, जो अगेन इज हेल्पफुल फॉर द फार्मर। So these are the social impact which we are creating. Lots of social impacts, social impact. If farmers are getting more income, they are investing those money in the education, health, creating infrastructure for their family. So these are the things. There are lots of impact created by the farmer itself. So अब मैंने कुछ क्रॉप को लिस्ट डाउन किया है, जो आपका कल्टीवेशन वैल्यू एडिशन, उसमें सारे क्रॉप का हमने नहीं, कुछ क्रॉप का हमने इसमें जिक्र किया है जो क्या कल्टीवेशन पैटर्न है। नेक्स्ट, यदि आप देखेंगे स्टेटस इंडिया का, तो पैन इंडिया बहुत अच्छा कल्टीवेशन हो सकता है। जो हमारा पैन इंडिया की बात हम करें तो 20 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हम कह सकते हैं, जिसमें गंगेटिक प्लेन है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न हिमालयन एल्टीट्यूड, तो बहुत सारे चीजें हैं। और वी आर वन ऑफ द 70th लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी कंट्री। यदि आप पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट फ्लोरा है, फ्यूना है, अलग अलग चीज है। यदि हम बात करें तो मोर देन 6,000 प्लांट्स यूज होते हैं आपके मेडिसिन के पर्पज से। बहुत सारा मेडिसिन प्लांट्स ऐसा है जो अनआइडेंटिफाई है, हैविंग मेडिसिनल प्रॉपर्टी, ट्राइबल्स के द्वारा यूज कर रहे हैं, मेन लाइनिंग में नहीं आया। तो बहुत सारा चीज R&D CSIR की तरफ से, ICR की तरफ से R&D हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं। और यदि हम बात करें तो जो डिमांड है ट्रेड में, बहुत ज्यादा डिमांड है। आप सोच नहीं सकते हैं कि डिमांड डे बाय डे इतना इंक्रीज कर रहा है कि आप कल्टीवेशन करते हैं तो आपको अच्छा इनकम मिल सकता है। और यदि आपको कोई भी चीज के, क्योंकि बहुत सारे क्रॉप कल्टीवेशन में है, रिसर्च में हुआ है, तो उन्होंने पैकेज एंड प्रैक्टिस डेवलप हो गए हैं। कुछ क्रॉप ऐसे हैं जो कलेक्शन में है, उनका भी पैकेज एंड प्रैक्टिस डेवलप हो रहा है, क्योंकि फॉर डेवलपिंग पैकेज एंड प्रैक्टिस इट टेक्स लॉन्ग टाइम। So lots of research institute are doing R&D on that to achieve the develop the package and practice and the medicinal property of the plant. Next slide. Next slide. तो मैंने आपको बता ही दिया कि इकोनॉमिकल यूज कैसे है, कि बहुत सारे फार्मर इनकम बना सकते हैं, not by doing cultivation but also by doing value addition of that crop. यदि किसी किसान के पास पैसा नहीं है तो डिस्टिलेशन यूनिट लगा के वहाँ पे दूसरे फार्मर के एरोमेटिक क्रॉप को डिस्टिल कर सकते हैं। These are the opportunity which creates with the farmer within the community. और इंडस्ट्री को चाहिए रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल डायरेक्ट फार्मर से प्रोक्योर करना चाहती है, लेकिन फार्मर के पास से नहीं मिल पाता है पर्टिकुलर क्वालिटी के साथ साथ वॉल्यूम।
जो मेजर लैकनेस है जो इंडस्ट्री का, जो लेना चाहती है लेकिन वो वॉल्यूम नहीं मिल पाता है, फार्मर कल्टीवेट करता है तो बहुत सारा फार्मर को प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम लाइक फ्लड आ गया, रेन अचानक बारिश हो गई, पोस्ट हार्वेस्ट के लिए तैयार किया, मौसम खराब हो गया, तो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते हैं। और इस बहुत सारा स्कोप है हम लोग के लिए, हम लोग इसको मूव कर सकते हैं। और ये सिर्फ कल्टीवेशन एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। यदि आप देखें कंप्लीट वैल्यू चेन में देखेंगे तो कोई किसान कल्टीवेशन कर रहा है, प्राइमरी प्रोडक्शन कोई और कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कोई और कर रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट कोई और कर रहा है, स्टोरेज कोई और कर रहा है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बिटवीन द वैल्यू चेन, कंप्लीट वैल्यू चेन, वेयर फार्म टू फोक, यदि फार्म टू कंपनी की हम बात करें तो बीच में बहुत सारे वैल्यू चेन है जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। उसमें अपॉर्चुनिटी, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड। यदि हम ग्लोबल डिमांड की बात करें तो रॉ हर्ब्स की 2026 तक 188 मिलियन डॉलर का मार्केट है, वो बढ़ता ही जा रहा है। ये एक पुराना सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 38% के ग्रोथ रेट पे बढ़ा है। हो सकता है कि नया रिपोर्ट आए तो कुछ और डिमांड आए, क्योंकि ये कोविड से पहले का स्टडी किया हुआ है। कोविड, आफ्टर द कोविड डिमांड आर राइजिंग डे बाय डे। यदि आप कोविड से पहले की बात करें तो अश्वगंधा का रेट चलता था 60 रुपया 70 रुपये पर केजी, लेकिन आफ्टर द कोविड यू गेट द डिफरेंट रेट, सिर्फ डबल हो गया है। तो इस तरह का मार्केट, एसेंशियल ऑयल का भी मार्केट ग्रो कर रहा है आपका, जो 16% के ग्रोथ रेट के साथ है। जो सिर्फ यदि आप एरोमेटिक क्रॉप की बात करेंगे तो वो सिर्फ फाइटोसुटिकल के लिए ही नहीं है, वो आपका फूड बिवरेज में यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, एरोमा थेरेपी में यूज होता है, होम केयर में यूज हो रहा है, फ्रेग्रेंस में, अगरबत्ती फ्रेग्रेंस ये सब में यूज होता है, यहाँ तक कि एनिमल फीड में भी यूज हो रहा है। तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी है। यदि हम करंट मार्केट की वैल्यू की बात करें फ्रेग्रेंस की तो 3000 करोड़ की है, फ्लेवर का 2250 करोड़ की ह्यूज मार्केट। यदि आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा मार्केट है। एरोमा केमिकल्स की बात करें 2800 करोड़, क्योंकि ये छोटा वॉल्यूम नहीं है। बहुत सारा एरोमेटिक कंपाउंड बाहर से इंपोर्ट होता है। यदि हम इंपोर्ट की देखें तो बहुत सारे क्रॉप इंपोर्ट हो रहे हैं। यदि हम एक्सपोर्ट देखें तो हम मिंट की बात करें तो मिंट सबसे ज्यादा, हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के तौर पे, आउट ऑफ कंट्री। तो एक चीजें हैं जो हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेन्स का हमारे पास सरप्लस स्टॉक है। हम देखें तो साल भर बैठा के प्रोडक्शन ना भी हो तो सरकार साल भर बैठा के खिला सकती है लोगों को। लेकिन आप न्यू क्रॉप पे यदि हम शिफ्ट करते हैं तो हम ग्लोबल मार्केट का डिमांड को हम फुलफिल कर सकते हैं। अभी बहुत सारे हर्ब्स इंपोर्ट हो रहे हैं। जो हमने कुछ मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप को प्रपोज किया है जो कल्टीवेशन अच्छे से हो सकता है, जिसका ह्यूज मार्केट में डिमांड है। और एक जो डिमांड इतना अधिक है कि आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे ब्राह्मी हो गया, जो जल ब्राह्मी है, सेंट्रिला है, कालमेघ, शतावरी, तुलसी, बच, मोरिंगा। तो इसमें आप कर सकते हैं बहुत ज्यादा। जैसे सबका यदि हम हार्वेस्टिंग टाइम देखें तो 3 से 4 मंथ के भीतर आपको इनकम आ जाता है। इसमें भी पैकेज एंड प्रैक्टिस की बात होती है कि कितनी बार हम तुलसी की बात करें या कालमेघ की बात करें, यदि हमें सीड लेना है तो हम फ्लावरिंग स्टेज पे जाने देते हैं। यदि हम सीड नहीं लेना है तो हम फ्लावरिंग स्टेज से पहले ही हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें जो केमिकल कंटेंट होता है वो फ्लावरिंग के बाद कम हो जाता है, तो जिसके कारण इंडस्ट्री भी सफर करती है। तो सीड प्रोडक्शन के लिए जाना है तो फ्लावरिंग स्टेज पे जाना है, नहीं जाना है तो हार्वेस्ट कर लेना है। तो इस तरह करके कुछ क्रॉप है जो आप देखेंगे, यदि आप करना चाहते हैं तो हर चीज हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। पिपली, शतावरी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, कपूर कचरी। तो ये सब कपूर कचरी आप ऑर्चर्ड में भी कर सकते हैं, जो आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का है, उत्तराखंड हो या बंगाल का अपर पार्ट, दार्जिलिंग वाला एरिया हो, अपर पार्ट हो, हिमाचल हो, तो इस जगह कपूर कचरी करते हैं तो अच्छा क्वालिटी मिलता है। ये 6 मंथ to 9 मंथ का क्रॉप है, तो एरिया टू एरिया आप देख सकते हैं। कंप्लीट
आपका प्लांटिंग पीरियड क्या है, हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है, क्रॉप मैच्योरेशन टाइम क्या है, ये सारा कुछ मेंशन किया हुआ है एज ए फॉर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्लाइड। तो काल में की बात हमने कहा कि ये 3 से 4 महीने की फसल है। आप देख सकते हैं कि 4 मंथ की फसल ड्राई करने के बाद काल में का होल पंचांग यूज होता है। सीड आपका रूट को छोड़ के सारे क्रॉप को हम चॉपिंग करके ड्राई करके स्टोर कर लेते हैं। यदि आप फ्लावरिंग स्टेज पे जाते हैं तो काल में की क्वालिटी सफर करती है, जो उसमें एंडोग्राफिक परसेंटेज है वो डिक्रीज करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि काल में को फ्लावरिंग से पहले हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। और कालमेघ को कम पानी चाहिए, लेस वाटर चाहिए। जो हमने आपका सैंडी लूम सॉइल हो तो अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा देता है। जो टेम्परेचर गर्मी अधिक चाहिए, क्योंकि गर्मी जितने कुछ क्रॉप जब तक प्लांट को स्ट्रेस नहीं फील होगा तब तक वो प्रोडक्टिविटी उस तरह का केमिकल कंटेंट उस प्लांट में नहीं आ पाता है। तो इस तरीके से आदमी खेती, यदि आप इल्ड की बात करें, क्योंकि सारा बात है कितना इल्ड है, तो 800 to 1000 kg मीन्स 8 से 10 कुंटल पर एकड़ आता है। ड्राई प्लांटिंग ड्राई की हम बात करें। यदि हम मार्केट में की बात करें तो मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट करता है। इस साल की हम प्राइस की बात करें काल में का, तो 15 to 18 रुपीज पर केजी मार्केट में सेल हुए हैं फ्रॉम द फार्मर साइड। What we are offering, we are giving the farmer 20 to 25 rupees per kg. तो आप ये देख सकते हैं कि प्राइस का कितना गैप है। हम लोग 2 मेथड कहते हैं फार्मर को कल्टीवेट करने के हैं। एक नर्सरी राइजिंग बेस्ड मेथड जो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, दूसरा ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो ट्रांसप्लांटिंग में आपका कॉस्ट अधिक लगता है, सीड कम लगता है। ब्रॉडकास्ट में आपका सीड अधिक लगता है लेकिन कॉस्ट कम लगता है। तो ओवरऑल बात आ जाती है कि कॉस्टिंग की बात है कि आपका इनपुट कॉस्ट कम होगा तो आउटपुट कॉस्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बेस्ट वे टू कंट्रोल द प्राइस इनपुट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। अश्वगंधा की हमें की बात हमें है कि हमने अश्वगंधा को देखा है कि डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट क्वालिटी आती है। यदि हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन में उस तरह की कंटेंट नहीं आ पाते हैं जो कंटेंट आपका गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा में लोअर बेल्ट। क्योंकि अश्वगंधा को स्ट्रेस चाहिए, कम पानी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। यदि आप नॉर्दर्न प्लेन में यदि आप करते हैं तो ग्रोथ होगा, लेकिन जो केमिकल कंटेंट है इंडस्ट्री के लिए वो कम हो जाता है। जो अभी भी कल्टीवेशन हो रहा है, नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कि फार्मर कल्टीवेट करते हैं, इंडस्ट्री नहीं लेती है। जो ट्रेडर्स हैं वो परचेज करते हैं, और वो परचेज करने के बाद जो आपका एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान ये सब के प्रोडक्ट के साथ मिक्सिंग करते हैं, जिसके कारण ये इंडस्ट्री को पता ना चल पाए, लेकिन क्वालिटी को निकाल देते हैं क्योंकि लो वैल्यू मिलता है। तो एक इंडस्ट्री ट्रेडर्स की एक स्ट्रैटेजी होती है, तो फार्मर को इसमें लॉस होता है क्योंकि फार्मर आर नॉट गेटिंग दैट मच मनी बट दे आर एक्सपेक्टिंग, तो जिसके कारण कल्टीवेशन पे सफर करता है। नेक्स्ट स्लाइड। सेम नर्सरी सेम चीजें इसमें आती है। इसका जो हार्वेस्टिंग टाइम होती है, यदि आप सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं तो हार्वेस्टिंग आप जनवरी टू मार्च कर सकते हैं। उसमें बेस्ट वे है क्या कि आप Can't hear आपकी you. आवाज नहीं आ रही है सर। क्वालिटी कृष्णा कैसा। जी? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ अब आ रही है, आप प्लीज रिपीट कीजिए नर्सरी से। हाँ, नर्सरी तो नर्सरी बेस्ड मेथड में कॉस्ट ज़्यादा बढ़ता है, ब्रॉडकास्ट में कॉस्ट कम लगता है। तो बेस्ट मेथड होता है कि कॉस्ट कटिंग करना। तो उसमें हम लोग सजेस्ट करते हैं फार्मर को, जो सीडर होता है, सीडर के थ्रू फार्मर यदि अपने खेत में डालता ब्रॉड करता है तो उसका कॉस्ट कम जाता है। नर्सरी में फिर वही कॉस्ट को डिक्रीज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब
Krishna, you are not audible. आवाज आ रही है? Yes, yes, go ahead, Krishna. ओके। जो हम अश्वगंधा की फसल जब रेडी हो रही है तो हम कैसे जाने कि द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग? सिंपल तरीका है, जो फार्म बेस्ड मेथड है, साइंटिफिकल मेथड है, कि हम लोग देखते हैं फाइबर कंटेंट कितना है, तो उसको जमीन से उखाड़ना है, उसको तोड़ना है बीज से। जिस तरह मूली की तरह आवाज कट सी आवाज आती है तो वो क्रॉप रेडी है। नहीं, और आवाज आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। यस यस कृष्णा। हाँ, और नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो जा रहा है। हाँ, गो अहेड, गो। तो फसल जब उखाड़ते हैं तब हम उसे कट करते हैं, तोड़ते हैं, तो गाजर या मूली हम जिस तरह तोड़ते हैं तो उस तरह से आवाज आती है, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट रेडी है, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। तो वो हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो फिर उसमें प्रॉपर सिस्टम है कि आप जब हार्वेस्ट करते हैं तो रूट को हार्वेस्ट करने के बाद उसको वॉश करना है, कटिंग करना है, वॉश करना है, क्योंकि एस कंटेंट जो हम फॉरेन पार्टिकल की बात करें या एस कंटेंट की बात हो तो इंडस्ट्री नहीं लेगी। तो जब एक प्रॉपर पैकेज बना हो, पैकेज एंड प्रैक्टिस बना है पोस्ट हार्वेस्ट का, कि हमें कैसे फॉलो करना है अपनी क्वालिटी को इनहांस करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। जब हम ड्रम स्टिक की बात करते हैं, मोरिंगा आपका यूज होता है फीड के तौर पे, मेडिसिन बोथ पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो उसमें किस पर्पस से हमें लेना है? ड्रम स्टिक के पर्पस से लेना है या लीफ पर्पस से लेना है? तो उस पर्पस के अकॉर्डिंग कल्टीवेशन प्लान होता है, क्योंकि जब आप कल्टीवेशन करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पॉड, तो आपका 1 मीटर का डिस्टेंस पे सोइंग होता है। जब आप प्लान करते हैं फॉर द लीफ हार्वेस्टिंग तो 1 फीट के पे ट्रांसप्लांट तो होता है। तो इस तरह से पैकेज एंड प्रैक्टिस डेवलप हुए हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड। तो उसके तहत हेलो। तो जो बेस्ट टाइम है, यदि हम किसी भी क्रॉप की बात करें, तो जो सीड से जर्मिनेशन होता है उसके लिए मानसून परफेक्ट टाइम होता है, क्योंकि मानसून में जब आप नर्सरी रेज करते हैं तो आपका कॉस्ट कटिंग होता है, क्योंकि मौसम इस तरह से होता है कि आपको वाटर देने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, सॉइल में भी मॉइस्चर रहता है, तो जिसके कारण आपका कॉस्ट कटिंग होता है। तो इसीलिए कहा भी जाता है जितने भी मेडिसिन एरोमेटिक क्रॉप हैं तो उनके बेस्ट सोइंग टाइम भी कहा जाता है मानसून या जनवरी फरवरी। तो आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी है तो आप मोरिंगा को आप जनवरी फरवरी में भी लगा सकते हैं, कल्टीवेशन में जा सकते हैं, या मानसून के सीजन में जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जब हम क्रॉप साइकिल की बात करते हैं, किसान कहते हैं कि नहीं आप सिर्फ एक क्रॉप की बात कर रहे हैं, वी नीड क्रॉप साइकिल फॉर 365 डेज, कि हमें इनकम अच्छा इनकम आता है। तो हमने कुछ क्रॉप साइकिल जो डेवलप किए हैं, उसमें आप तुलसी 2 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप मार्च अप्रैल में लगाते हैं तो 2 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसका सितंबर तक 2 हार्वेस्ट हो गया, सितंबर अक्टूबर में आप अश्वगंधा जा सकते हैं। सेम कंडीशन है, तुलसी के जगह आप भूंगी आंवला भी यूज कर सकते हैं, सेना भी यूज कर सकते हैं। तो क्रॉप साइकिल उसके अकॉर्डिंग आप डेवलप कर सकते, अपने फील्ड में यूज कर सकते हैं, जिससे कंप्लीट आपको क्रॉप आपके पास हाथ में आए। जो ये आपका क्रॉप साइकिल है जो परफेक्ट है, साइंटिफिकल तौर पे प्रूवन है, जो आपको एक अच्छा रिटर्न देता है। जब भी आप खेती करते हैं मेडिसिनल एरोमेटिक की, तो आपकी इनकम 40,000 to 70,000 के बीच में ही रहती है। इससे अधिक यदि कोई क्लेम करता है तो एक बार रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, किसी एक्सपर्ट के साथ, किसी इंडस्ट्री के साथ बैठ के एक बार बात कर लें कि रियल स्टोरी क्या है। क्योंकि महाराष्ट्र में इस तरह से किसान को सिर्फ प्लांटिंग मटेरियल को सेल करने के नाम पे महाराष्ट्र में बहुत सारे किसान को ठगा गया है। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, आंध्रा और कर्नाटक भी सफर किए हैं, क्योंकि इन एंड ऑफ द डे जो सफरर है वो फार्मर है, नॉट द इंडस्ट्री जिसको प्लांटिंग मटेरियल बेचना है, वो नहीं, क्योंकि वो बेचा पैसा कमाया, सीड बेचने वाले कमा लिए।
लेकिन लॉस किसके हुआ? फार्मर को लॉस हुआ। यदि कोई भी कहता है कि आपका इनकम मोर देन 70 लाख होगा, तो प्लीज आप रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करके उनसे बात करके फाइनल हो जाए कि क्या ये सही है। नेक्स्ट लाइन। हम एरोमेटिक की ही क्रॉप की बात करें तो जो हम लोग के डिमांड में है, लेमन ग्रास, पामा रोजा, वेटिवर, मिंट, बेसिल, पचौली, टर्मरिक लीफ, जो ये सब क्रॉप को जो सोइंग टाइम है वो आपका फरवरी मार्च से लेके मानसून, क्योंकि मानसून बेस्ट टाइम कहा जाता है। इनकेस वेटिवर के लिए आपका दिसंबर जनवरी से मार्च का बेस्ट टाइम होता है कि कल्टीवेशन के लिए। आप मिंट की कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप है कि अगेती मिंट आप करते हैं तो आप नवंबर दिसंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से 3 कटिंग आप ले सकते हैं पूरे क्रॉप साइकिल में। तो आप पचौली को इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं ऑर्चर्ड में भी, जो आपको एक एडिशनल इनकम दे सकता है ऑर्चर्ड से। टर्मरिक की हम बात करें तो टर्मरिक बहुत सारे किसान खेती करते हैं, तो उसका एक आउटकम ये है कि जो भी किसान टर्मरिक हल्दी की खेती करते हैं ऑर्चर्ड में, तो वो लीफ का भी यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, तो जिसके कारण उसको एक एडिशनल इनकम हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में जो हमने क्रॉप साइकिल की भी बात की, क्योंकि जो आप एरोमेटिक क्रॉप में देखेंगे तो मिंट, तुलसी, कैमोमाइल, these are the crop cycle which is best for the farmer, क्योंकि कंप्लीट एक क्रॉप साइकिल मिला, प्रोडक्टिविटी आया, और आपने इफ एनी फार्मर है इन्वेस्टेड इन द डिस्टिलेशन यूनिट, तो उनका डिस्टिलेशन यूनिट 365 डेज रनिंग हो सकता है बाय एडॉप्टिंग पर्टिकुलर क्रॉप साइकिल। तो आप बहुत सारे, यदि आप देखेंगे बिहार और यूपी में जो भी वेटिवर के फार्मर थे या हैं, उन्होंने मिंट के साथ इंटरक्रॉपिंग करना शुरू कर दिया है वेटिवर का, तो जिसके कारण मिंट जो टोटल कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट निकाल देता है वेटिवर का, जो एट ए टाइम ऑफ कल्टीवेशन। तो इस तरीके से फार्मर को एक एडिशनल इनकम मिल जाता है और कॉस्ट कटिंग का मिल जाता है। और यदि कोई फार्मर कल्टीवेशन कर रहा है आपका ओपन फील्ड में टर्मरिक और जिंजर, तो उसमें हार्वेस्टिंग के बाद नवंबर दिसंबर में लीफ हार्वेस्ट होने के बाद फार्मर उसमें मूव कर सकता है पी और मस्टर्ड के लिए, क्योंकि कुछ जगह अगाती मस्टर्ड होता है, कुछ जगह पिछात होता है, तो अकॉर्डिंग टू द एरिया और मैच्योरिटी ऑफ द क्रॉप, तो उस तरह से किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। जो यदि हम बात करें तो बेस्ट चीज है कल्टीवेशन के बाद मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि फार्मर कल्टीवेट कर लेते हैं, मेजर रोल प्ले करता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि विदाउट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट आपका क्रॉप को एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। तो पोस्ट हार्वेस्ट में यदि हम देखते हैं तो हार्वेस्टिंग है, क्लीनिंग है, ड्राइंग है, पैकेजिंग है, प्राइमरी प्रोसेसिंग और स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन है। तो उसके लिए जो हार्वेस्टिंग है, तो हार्वेस्टिंग एट नेक्स्ट स्लाइड में जब हम हार्वेस्टिंग हो जाता है एट राइट टाइम पे, राइट मैच्योरिटी होने के बाद, तो हम उसको करते क्या है कि जो हार्वेस्टिंग हो गया तो अब उसके, क्योंकि हम ड्राइंग करना है, सुखाना है, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर जगह चाहिए, क्योंकि जहां आप ओपन फील्ड में ड्राइंग नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए है क्या कि आप ड्राइंग फैसिलिटी सेंटर जो भी आपका होता है वहां पे आप लेके आते हैं, तो उससे आपका कॉस्ट कटिंग हो जाता है। और आपका जो यदि आप कोई हर्ब्स को ड्राई कर रहे हैं तो उसको ये देखना होता है कि इनडायरेक्ट सनलाइट लगना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगना चाहिए, जिसके कारण होता है कि कलर डिस्कलर भी हो जाता है। और क्योंकि इंडस्ट्री परचेज करती है रॉ हर्ब्स, फ्लावर हो या लीफ हो या कुछ भी एरियल पार्ट हो या कुछ भी, तो उसमें कलर होना बहुत जरूरी, कंटेंट के साथ साथ कलर होना बहुत जरूरी है। तो उसको इनडायरेक्ट सनलाइट दिया जाता है। साथ में ये भी कोशिश किया जाता है कि आप यदि इनडायरेक्ट सनलाइट दे रहे हैं तो आपका अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल से भी बचाता है, धूल से भी बचाता है, साथ में बारिश से भी बचाता है।
यदि आप देखेंगे तो जब आप खेत में जहाँ रखे हैं तो देखेंगे, यदि गांव में अभी जो प्रैक्टिस है वो नीचे जमीन पे डाल दिया जाता है, काट कर डाल दिया गया और वो सूख रहा है, सूखने के बाद तो फॉरेन पार्टिकल डस्ट बहुत सारा आ जाता है जो रिजेक्टेड मटेरियल हो जाता है इंडस्ट्री के लिए। तो उसमें कॉस्ट जब इंडस्ट्री का लगता है या किसी ट्रेडर का लगता है तो कॉस्ट कटिंग करता है कि नहीं, जिसके कारण फार्मर को अच्छा रेट नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए जो प्रोसेस है कि आप जब भी ड्राइंग करना है तो नीचे एक अच्छा सा कुछ फ्लोर होना चाहिए या कुछ तिरपाल हो जो आप उसको नीचे ढककर उसके ऊपर आप कुछ भी सुखाएं, तो जिसके कारण ये है कि आपका क्वालिटी अच्छा बनेगा, फॉरेन पार्टिकल नहीं आएगा। साथ में ये भी होता है क्योंकि वो ऐसा जगह होना चाहिए जानवर आ ना पाए, क्योंकि कितनी बार हमने देखा है फार्मर के फील्ड पे कि वहाँ पे कुत्ते आ गए हैं, बिल्ली आ गए हैं, तो उसमें मलमूत्र त्याग कर देते हैं, तो जिसके कारण जो क्वालिटी है वो सफर करता है, तो उसमें फॉरेन पार्टिकल ये सब आ जाती है। तो ये सब प्रोसेस है जिस चीज को हमें अवॉइड करना है, और ये भी देखना है कि कोई भी पेस्टिसाइड आसपास ना हो। पेस्टिसाइड यदि आप यूरिया का बोरा या कोई केमिकल आप यूज कर रहे हैं खेत में, उसके बगल में ही आप सुखा रहे हैं, तो इसके कारण होता है कंटेमिनेशन का भी चांस हो जाता है, तो जिसके कारण ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये देखना है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, प्रॉपर हर चीजों को देख के सुखाया जाए। नेक्स्ट स्लाइड। जब हम पैकेजिंग की बात करते हैं तो फार्मर के साइड से हमने एक जो बहुत गलती होती है वो क्या है कि दे आर यूजिंग द बैग ऑफ यूरिया डीएपी विदाउट क्लीनिंग और बिना सुखाए हुए, तो जिसके कारण एक कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज को अवॉइड करना है। उसके लिए जो भी पैकेज मटेरियल हो जिसमें हमें स्टोर करना हो, यदि वो नया हो तो सबसे बेस्ट हो। यदि आप सेकेंड हैंड यूज कर रहे हैं या किसी रीयूजेबल बैग को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले उसे वॉश कर ले। वॉश करने के बाद उसमें पेस्ट का कोई निशान ना हो, कोई एनिमल का कुछ भी इस तरह से ना हो। और जब पैकेजिंग से पहले आप ये भी देखें कि आप जो क्रॉप को पैक करने जा रहे हैं उसमें कोई आपका फॉरेन मैटर ना हो, जिस तरह से मजदूर खेती कर जब ड्राई करता है तो गुटखा खाया, गुटखा का रैपर उधर डाल दिया, कोई बच्चे टॉफी खाए, टॉफी का रैपर, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि कुछ इस तरह का पैकेजिंग के टाइम में मटेरियल ना हो। उसके लिए जो हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस के लिए बात करते हैं वो है आपका HDP बैग। यदि HDP बैग हो तो सबसे बेस्ट होता है। और कितनी बार हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि यदि आप स्टोर करते हैं तो जो भी आपका पोटेंशियल बायर है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं तो उनसे आप फीडबैक ले लें कि कौन सा बैग आपके लिए बेस्ट होगा स्टोर करने के लिए, क्योंकि वो बायर है, तो बायर के नीड के अकॉर्डिंग आप यदि काम करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। जब हम स्टोरेज की बात करते हैं, क्योंकि आपने पैक कर लिया, सुखा लिया, पैक कर लिया, अब स्टोरेज की हम बात करें तो स्टोरेज ऐसे जगह पे होना चाहिए कि जहाँ पे पानी ना आ जाए, क्योंकि बारिश के समय पे पानी भीतर ना आ जाए, कहीं से पानी टपकता ना हो भीतर, रेनवा कहीं से भी कोई वहाँ पर आपका ड्राई हो, वेंटिलेशन का सुविधा हो, ऐसा ना हो कि एकदम कंप्लीट पैक हो, वेंटिलेशन ना हो, तो वेंटिलेशन ना होने के कारण भी बहुत सारी चीजें क्वालिटी डिग्रेड करता है। और टेम्परेचर भी 25 से 30 डिग्री के बीच में हो, जो भी रिकमेंडेड क्रॉप के अकॉर्डिंग हो तो उसके अकॉर्डिंग हो, ऐसा ना हो कि एकदम इतना गर्मी दे, उमस दे दे कि आपका क्रॉप खराब हो जाए, तो इस चीज को ध्यान दे के रखना है। और उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट में यूज कर सकते हैं उसको, क्योंकि जहां भी जाना है तो जब ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज करते हैं तो इस तरह का कंटेनर यूज ना करें ट्रांसपोर्ट में कि जैसे ओपन डाला हो, तो ओपन होगा तो डायरेक्ट सनलाइट लगेगा। तो इसलिए जो बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग कहते हैं, जो कंटेनर हो तो कंटेनर बेस्ट ऑप्शन है आपको फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हर्ब्स। जब हम इक्विपमेंट की बात करें, देयर आर लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट यूज फॉर द स्टोरेज, हार्वेस्टिंग,
फॉर द प्राइमरी प्रोसेस, तो उसको नीट एंड क्लीन होना चाहिए और कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए। कंटेमिनेशन जैसे कितनी बार हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो काटने वाला फसल को काट रहे हैं उसी से हम कोई पेस्ट को भी के डब्बे को ओपन कर रहे हैं, तो इस तरह का ना हो। यदि आप इस तरह का करते हैं तो हार्वेस्टिंग से पहले आपको इस तरह को वॉश कर लेना है कि कोई भी तरह का कंटेमिनेशन ना हो, और उसको अच्छे से सुखा के यूज करें। यदि वुड के केस में हम बात करें तो उसमें आप ऐसे केमिकल का स्प्रे ना करें कि जिससे आपका क्वालिटी डिग्रेड हो। जब हम डिस्टिलेशन यूनिट की बात करते हैं एरोमेटिक क्रॉप में, तो दो तरह से डिस्टिलेशन होता है, एक हाइड्रो डिस्टिलेशन है, एक स्टीम डिस्टिलेशन है। तो हाइड्रो डिस्टिलेशन में जब हम कंटेनर में मटेरियल भर देते हैं, नीचे वाटर होता है, उसके ऊपर मटेरियल होता है, नीचे से हम हीटिंग देते हैं, तो हीट के कारण वो पूरा वेपर के थ्रू कंडेंसर में जाता है, उससे हम फिर ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं हाइड्रो से। तो जिसमें हम लोग एक कॉन्सिडर मानते हैं कि हाइड्रो डिस्टिलेशन से जो एफिशिएंसी होनी चाहिए, प्रोडक्शन होनी चाहिए, उतनी आती नहीं है, इसलिए जो हम लोग रिकमेंडेड करते हैं वो स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन आपका ऑयल कंटेंट अधिक निकालता है कंपैरेटिव टू हाइड्रो डिस्टिलेशन। सिर्फ इसमें डिफरेंस अंतर क्या है कि एक सेपरेट वाटर टंकी होता है जहां हम हीट करते हैं, और स्टीम के थ्रू ये पूरा एरोमेटिक जो तेल है वो निकलता है, जो डायरेक्ट हीटिंग है, इनडायरेक्ट हीटिंग होता है थ्रू स्टीम। तो ये जो एज ए इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू जो बेस्ट मेथड होता है वो स्टीम डिस्टिलेशन होता है फॉर द फार्मर। ऐसा नहीं, देयर अलग अलग मेथड्स भी है डिस्टिलेशन के लिए, लेकिन फार्मर के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो स्टीम डिस्टिलेशन है एट द फील्ड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दिख रहा है? हाँ यस। जब हम कल्टीवेशन कर लिए, सारा कुछ प्राइमरी वैल्यू एडिशन कर लिए, तो रोल आता है कि आप जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हम कैसे अडॉप्ट करें, अपने इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें सिर्फ आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं इनहांस होती है, साथ साथ में आपका फील्ड का भी क्वालिटी, आपके फार्म का भी क्वालिटी इनहांस होता है, होल प्रोसेस इनहांस होता है, जिसके कारण आपको एक अच्छा रिटर्न, अच्छे प्रोडक्ट तैयार होते हैं। क्योंकि आपका यदि आपके प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपको अच्छे प्राइस देने के लिए इंडस्ट्री आपके पास खड़ी रहेगी, कोई भी अच्छा प्राइस देगा। लेकिन आपको गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एडॉप्ट करना है एट एनी कॉस्ट। तो स्टार्टिंग होता है, साथ में आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करना है। तो स्टार्टिंग होता है आपका साइट सिलेक्शन और लैंड प्रिपरेशन से। कौन सा साइट हो जो प्रॉपर हम प्लांटिंग करते हैं, तो ऐसा फील्ड ना हो जो कंटेमिनेशन वाला आपका एरिया हो, क्योंकि इंडस्ट्री के बगल में वो लैंड आपका ना हो, इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर उसके साथ अटैच नहीं कर रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जिस जगह रखा है वहां पे जो म्युनिसिपल वेस्ट डंपिंग होता है आपके नियरेस्ट लोकेशन, तो इस तरह से लोकेशन को आपको हटना है, दूरी पे करना है, उस एरिया में नहीं करना है। दीज आर द थंब रूल ऑफ गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जब आप साइट सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप करते क्या है कि इसका सॉइल टेस्टिंग करते हैं कि हाँ आपका सॉइल जो आपकी क्रॉप के लिए फिट है या नहीं है। तो जब आप फिट हो जाता है तो आप प्लान करते हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपने सॉइल टेस्ट किया तो आपके फार्म लैंड में चाहे जो सिलेक्टेड फील्ड है उसमें किस चीज़ की कमी है, यूरिया नाइट्रोजन की कमी है, पोटास की कमी है, कौन सा केमिकल कंपाउंड की कमी है। जो उस कमी को देखते हुए आप यूज करते हैं फर्टिलाइजर। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप फर्टिलाइजर यूज करें, खासकर मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप के लिए, तो ऑर्गेनिक यूज करें, तो दीज आर बेस्ट ऑप्शन होता है ऑर्गेनिक। इन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड आपके घूम के आते हैं प्लांट के थ्रू, तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड इनपुट मटेरियल यूज करें। जब सोइंग, क्योंकि आपका फील्ड रेडी हो गया, कल्टीवेशन के लिए तैयार है कि आपने उसको जुताई कर दी, मॉइस्चर कंडीशन सारा कुछ, तो टाइम आता है सोइंग का। यदि आप सीड कर है तो सोइंग का सीड आएगा, या प्लांट है तो प्लांटेशन का टाइम में ट्रांसप्लांट आप करेंगे। तो उस
उसके लिए आपको ये देखना है कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपके पास क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल नहीं है तो आप ICR, CSIR की किसी भी लैब के साथ या आपके नियरेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को आप अप्रोच करके आप क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल ले सकते हैं। क्योंकि अभी आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारा मिक्स वैरायटी है, पोसीता और जवाहर मिक्स है, पता नहीं चल पाता है कि कौन सी वैरायटी है। तो इंडस्ट्री भी सफर करती है, क्योंकि एंड कंज्यूमर आपका इंडस्ट्री है, आपके रॉ मटेरियल का। तो इंडस्ट्री सफर करेगी तो आपके पास नहीं आएगी, वो सोर्स खोजती है कि क्वालिटी कहाँ से मिलेगा। तो आप किसी फार्मर से सीड लेते हैं तो ये पता कर ले कि हाँ जो सीड है कि वो कौन सी वैरायटी की है। यदि रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेते हैं तो आपको पता रहेगा कि हाँ वैरायटी कौन सा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी आप क्रॉप को ले, आपके एरिया में कौन सुटेबल क्रॉप कौन सा है। यदि आपका फ्लड इफेक्टेड एरिया है तो उसमें ऐसा क्रॉप को नहीं सिलेक्ट करना है जो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करे, आपके प्रोडक्शन को सफर करे। आपको क्रॉप सिलेक्शन करना है आपके ज्योग्राफिकल नीड के प्रॉब्लम को देखते हुए, तो जिसके कारण आपका क्वालिटी इनहांस करेगा। जब हम प्रैक्टिस की बात करते तो हमने आपको पहले भी कहा कि इन ऑर्गेनिक मटेरियल यूज ना करें, कि यूरिया, पोटाश, DAP यूज ना करें। उसके जगह आप कल्चर यूज करें, बैक्टीरिया यूज करें, चाहे राइजोबियम हो, एरोबैक्टम हो, PSB हो, ट्राइकोडर्मा हो, इस सब का यूज करें। क्रॉप का नेचर है कि कुछ क्रॉप स्ट्रेस में रहते हैं, उनको स्ट्रेस चाहिए कि फॉर द बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर क्वालिटी। तो आप कहीं हैवी वाटरिंग तो नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे अश्वगंधा का टाइम है, बहुत सारे फार्मर हैवी वाटरिंग कर देते हैं, फ्लडिंग कर देते हैं, जिसके कारण क्वालिटी डिक्रीज करता है। और जैसे ही आपके फील्ड में मॉइस्चर कंटेंट अधिक होगा तो हो सकता है कि कुछ बीमारी भी आप कैरी करें। तो इस चीज के लिए देखना है कि हाँ कि कौन सा कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये देखना है कि वीड बहुत सारे प्लांट जब खेत में होते हैं, वीड ऑटोमेटिक बहुत सारे हो जाते हैं। तो करना है क्या है कि वीड को हटा देना है। वीड को हटाने के लिए दो तरीका होता है, या आप मल्चिंग करते हैं तो मल्चिंग में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप यदि लाइन टू लाइन सोइंग कर रहे हैं तो बीच में आपके पास जो पुआल है, लोग पुआल को जला देते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप पुआल को जलाएं नहीं, आप उसको एज ए मल्चिंग यूज करें, जो आपको जितने भी वीड हैं उसको जनरेट नहीं होने देते हैं। तो ये दीज आर द बेस्ट ऑफ कल्चर प्रैक्टिस जो आपको एडॉप्ट करना है। उस एडॉप्ट करने के बाद आपकी कॉस्ट को डिक्रीज भी करेगी और आपके जो फार्म प्रोडक्ट हैं उसको इनहांस करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। जब हार्वेस्टिंग की हमने बात की तो हार्वेस्टिंग राइट टाइम पे होना बहुत जरूरी है। आपका प्रोडक्ट कहीं अनमेच्योर तो नहीं है, मेच्योर तो नहीं है, बिफोर फ्लावरिंग करना है या आफ्टर फ्लावरिंग, पर्पस क्या है, सीड प्रोडक्शन है या उसका हर्ब्स लेना है, तो उसको देखते हुए आप वो करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने हार्वेस्टिंग प्लान किया और बारिश हो रही है उसमें भी हार्वेस्टिंग करें। तो इस सब चीजों को अवॉइड करना है कि एक परफेक्ट इन्वायरमेंट हो, जो सूखा मॉइस्चर कंटेंट ना हो इन्वायरमेंट पे, उस समय हार्वेस्टिंग करना है। और जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो मटेरियल किस तरह का है, कहीं आपको फील्ड में ही छोड़ना है या उसको ट्रांसप्लांट करके सही जगह पे पहुंचाना है कि जिससे आप ड्राइंग कर सके, तो सेकेंडरी प्रोसेस पे आप मूव कर सके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप हार्वेस्ट कर लिए हैं वहां पे जंगली जानवर आके अपना घर बना लिया है। तो ये सब चीजों को आपको देखना है कि कुछ भी फॉरेन पार्टिकल या कुछ इस तरह के कंपोनेंट आपके जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको डैमेज नहीं कर रहे हैं। साथ में हार्वेस्टिंग के बाद एक मेजर कंपोनेंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि उसमें कहीं कोई वीड या कोई फॉरेन पार्टिकल ना हो, क्योंकि जब वो ड्राई हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपका तैयार है, रेडी है या नहीं रेडी है। क्योंकि कितनी बार आप पंचांग बनाते हैं तो वीड बहुत सारे आ जाते हैं, तो मिक्स हो जाते हैं, तो उस समय आपको ग्रेडिंग करना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सेकेंडरी प्रोसेस में हार्वेस्टिंग के बाद ड्राइंग से पहले उसमें आप वीड या जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसको आप हटा दीजिए। तो ये आपका क्वालिटी को, ये सारा गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें आपके प्रोडक्ट को हेल्प करता है क्वालिटी इनहांस के लिए। नेक्स्ट स्लाइड।
जब हम इस फील्ड में काम करें तो हम लोग को बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल कौन डेवलप करेगा, क्योंकि फार्मर के पास अभी फार्मर आर नॉट वेल ट्रेन टू डेवलप सीड प्लांट। तो हमने कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, कुछ एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेट किया है कि नो, पहले आप प्लांटिंग मटेरियल आप हमारे लिए डेवलप करें, साथ में पैकेज एंड प्रैक्टिस डेवलप करें। मेडीएब हमें सपोर्ट कर रहा है, इंक्यूबेशन एक्सपेंशन में हमें हेल्प कर रहा है कि मल्टीपल लोकेशन में हम कैसे काम करें। बहुत सारे फार्मर को प्रॉब्लम है क्योंकि कल्टीवेशन कर रहे हैं, मार्केट लिंकेज का इशू है, तो वहाँ हम हेल्प कर रहे हैं। NCSIR NBRI के साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल को कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सारे न्यू प्लांटिंग मटेरियल हैं जो डेवलप हुए हैं, जो इंडस्ट्री के नीड है उस तरह के क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, लेकिन प्रोडक्शन कम है क्योंकि हर इंस्टीट्यूट की एक अपनी लिमिटेशन होती है। तो उस चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट किए हैं कि कम से कम आप हमारे लिए, हम आपको सीट दे रहे हैं, आप अपने सुपरविजन में इसको डेवलप करें, मल्टीप्लाई करें, जो हम फार्मर को दे पाए, क्योंकि फार्मर को देने के लिए हमारे पास क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कोलैबोरेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे बहुत सारी FPO काम कर रही हैं फील्ड पे, कल्टीवेशन कर रही है, लेकिन उनको पता नहीं है पैकेज एंड प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल वे में जो आ रहा है उसको हम करें। तो उन FPO को भी, इंडिविजुअल फार्मर को भी, जो लोकल एंटरप्रेन्योर है, उनको भी चाहिए कि कोलैबोरेट हो जाए, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन हो जाए, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट हो जाए, कि उनके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे, उनके जो सिस्टम है उनको ऐड ऑन कर सके। क्योंकि आप देखेंगे कि पहले शतावरी की हम बात करें तो शतावरी 4 साल में होता था, 3 से 4 साल में। अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने काम किया तो वो पैकेज एंड प्रैक्टिस 18 महीने तक लेके आ गए। तो इस तरह करके बहुत सारे क्रॉप ऐसे हैं जो कलेक्शन से आते हैं, फॉरेस्ट कलेक्शन होता है। अब उसको, क्योंकि फॉरेस्ट में एक लिमिटेड फ्लोरा होता है, आप उसको सस्टेनेबल वे में हार्वेस्टिंग नहीं होता है, जाते हैं उखाड़ के लेके आ जाते हैं, तो जिससे फॉरेस्ट का इकोलॉजी भी खतरे में आ जाता है। इसलिए उसको कल्टीवेशन पे शिफ्ट किया जाए। तो कल्टीवेशन के लिए पैकेज एंड प्रैक्टिस कौन डेवलप करेगा? हम और आप डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम है डेवलप करना। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट कीजिए, जो आपके लिए, आपके कल्टीवेशन में, आपके प्राइमरी वैल्यू एडिशन में हेल्प करेगा। तो इसीलिए हमने और भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ हम लोग कोलैबोरेशन में बात कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर मेडिसिनल एरोमेटिक सेक्टर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, quality planting material, package and practice, and post harvest management. Next. Next slide. Krishna, you are not audible. Yeah. तो यदि कोई फार्मर, कोई इंटरप्रेनर, कोई FPO यदि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। यदि किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Thank you, Krishna Gopal. You have very well highlighted various aspects of MAP cultivation and primary value addition at the farm gate, and so a lot of things have been discussed, and you highlighted some of the global demand for some of the crops and how this demand can be met through either through collection or as cultivation. Need of good agricultural practices, again, it is most important aspect which you have very well thought of it and been. And the model that you are working, exactly the, again, it is thought-provoking, lot of linkage, a lot of interactions with the institutions, individuals, organization is needed for the prosperity of medicinal plants through cultivation. With this brief, so I'm now opening this presentation for discussion. Yeah, if you have any questions, you can ask to Krishna Gopal. Yeah, Ruchika Ramesh. Yes, sir. Can I? Ramesh, yeah. Hello. 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 Sir, I'm audible? Yes, madam, yes. Yes. Good afternoon, sir. Sir, मुझे सर से कुछ पूछना था सर।
Yes, yes. हेलो Yes, yes, go ahead. सर लास्ट टाइम जब कोविड चालू था तब सर चिया का प्रोडक्शन के लिए जैसे सर ने अभी बताया वैसे ये कंपनी आया था हमारे तरफ। तो सर उस टाइम पे क्या हुआ था, फार्मर्स लोगों ने मतलब एग्री किया उनसे और चिया को उन्होंने ग्रो किया उनके फार्म में। तो सर प्रॉब्लम उनको ये आया जब उन्होंने ग्रो किया, सारी चीज़ें अच्छी थी, उसके बाद में सर वो ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन उसमें मतलब जो लीव्स थे ना सर, वो मतलब इंसेक्ट्स ने वो काटना चालू कर दिया। वो कुछ उसका कॉस्टिंग में भी 15 to 20,000 पर केजी ऐसा कुछ समथिंग था सर, कंफर्म मुझे भी नहीं पता। मुझे सर ये जानना था कि जब फार्मर लॉस में जाता है तो सर फिर उस टाइम पे क्या करना? Okay. या Krishna Gopal, when you enter a contract with the farmers, if the farmers lose the crop due to vagaries, climatic vagaries, in such cases, is there any system to protect the farmer income? Sir, we are talking with the government of India, NMPV, for the providing insurance facility for the medicinal not aromatic audible. crop. I'm audible? yes sir. Krishna. Yeah, we are talking with the NMPV for the providing insurance for the medicinal aromatic crop, because होता क्या है कि अभी आप देखेंगे तो अचानक बारिश हो गया। जैसे बंगाल में हमने लगभग 150 एकड़ में कालमेघ लगवाया था, हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो बारिश हो गया और ऐसा बारिश हो गया कि फार्म में 1.5 फीट का पानी लग गया। तो उस केस में क्योंकि हमने इंश्योरेंस कंपनी से बात किया था तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रोविजन नहीं है इस तरह का देने का। तो हम लोग एनएमपीवी से बात की तो एनएमपीवी ने कहा, क्योंकि उनको प्रेशर क्रिएट करना है कि उसके लिए मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट चाहिए इंश्योरेंस के लिए। तो जैसे हम लोग चिया नहीं करवाते हैं, बीच में लेकिन आपकी आवाज चली गई। एनएमपीबी से बात किया, फिर क्या हुआ, वहां से शुरू कीजिए। तो एनएमपीवी ने इंश्योरेंस के लिए बात हुआ तो एनएमपीवी का को प्रेशर क्रिएट हमें करना है। तो प्रेशर के लिए जितने भी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट स्टेक होल्डर है, तो उनकी तरफ से प्रेशर होना जरूरी है कि मेडिसिनल एरोमेटिक को इंश्योरेंस, क्रॉप को इंश्योरेंस दिया जाए। बात हम यदि हम पेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि जिस कंपनी के साथ आपने एमओयू साइन किया था फॉर द चिया कल्टीवेशन, तो उसमें क्या ये पैकेज एंड प्रैक्टिस क्या क्या स्टेटस था? क्योंकि पैकेज एंड प्रैक्टिस यदि आपने सही से अडॉप्ट नहीं किया होगा या अगले कंपनी ने आपको पैकेज एंड प्रैक्टिस ढंग से दिया नहीं होगा, जिसके कारण आपको लॉस लगा होगा। पहला चीज ये होता है। यदि कोई भी क्लेम करता है कि आप, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो प्लांटिंग मटेरियल है उस प्लांटिंग मटेरियल का 50% कॉस्ट देते हैं फार्मर को। तो जिसके कारण है कि कॉस्ट कटिंग हो जाता है कि बहुत सारी कंपनी क्या करती है वो, हेलो हेलो Okay. Yes, sir. Can you hear Yes, me? sir. Can I ask Yeah, ask the question? Yeah, minute. Okay. Oh, minute. Let Krishna to answer. Yeah. तो आपको हम लोग 50% जो सीड है, सीड या प्लांटिंग उसका कॉस्ट बियर करते हैं। तो जिसके कारण हमारे ऊपर भी लायबिलिटी रहती है कि हाँ, कि जो भी आपके फील्ड में लगा है उसमें हमारा भी एक तरह से इनडायरेक्ट स्टेक होता है, क्योंकि आपका कॉस्ट कटिंग हम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनी आती क्या है कि सिर्फ प्लांटिंग मटेरियल उनको बेचना है, सीड बेचना है, हाई रेट पे बेचे, किसान को चूना लगाए, जब बाईबैक का टाइम आया उस समय कहते कि नहीं ये रेट है, 10 कहानी बताना शुरू किए। तो इस तरह से यदि कोई आपको, जैसे हम भी आपको यदि ऑफर कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सीड इस रेट पे आपको ऑफर करें, तो आप मार्केट से क्रॉस चेक कर लीजिए, आप डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट से क्रॉस चेक कर लीजिए क्या जो प्राइस है क्या ओवर द कॉस्टिंग तो नहीं है। जैसे शताब्दी का मैं एग्जांपल दूं, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में क्या हुआ, जो 5 रुपए का पौधा, जो 3 से 5 रुपए में पौधा मिलता है, उसको लोगों ने 20 रुपए से 80 रुपए में बेचा।
तो ये जो प्रॉब्लम है इस चीज को आपको देखना होगा कि आपको ये देखना होगा कि ये जो बायर है या हमसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहा है, चाहे मैं ही क्यों ना हो, कोई और क्यों ना हो, तो आपको देखना है कि हाँ उनकी तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, क्या पोस्ट हार्वेस्ट में सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल्टीवेशन में सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, पैकेज एंड प्रैक्टिस में सपोर्ट मिल रहा है या नहीं। तो आपको हर चीज देखना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंपनी को चाहिए इतना माल चाहिए, बीज दिया या बीज आपने कंपनी से परचेज किया और खेती करना शुरू, पता चला कि लास्ट में कि आपको नुकसान हो गया। तो इस चीज को अवॉइड करना है कि उनसे जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें या कोई बात करें तो पैकेज एंड प्रैक्टिस, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, A to Z कंप्लीट इकोसिस्टम की बात करें। जी ओके सर, थैंक यू सर। Okay, okay. I think the message is that you should be very careful while signing the contract and see all the clause in the contract and before going for signing. So a suggestion, sir, I think even the last thing I was asking about contract farming, where for the legal modalities and all, because if you're doing it with a big company, they're very strong legally in the terminology. A small time person may not know where they are pulling you along in the words. If there can be some guidance, at least like now what he said, there are very valid points that if there could be some session particularly for contract farming, if somebody is getting into contract farming, what do we look at specifically on that, sir? Yeah, definitely we'll take a note of it, and for that you need to have a legal person or somebody With that who can guide us. I Yeah. mean, like Yeah. I know I'm getting into it in future, so that, Yeah. that there is a thing, because if you tie up with big firm, they have the legal team very strong. They can Yeah, play yeah. around with words. Yeah. Can I Yeah. also proceed with my question, if you don't mind? Yeah, Deepa ji. सर मैं इसका जवाब देता हूँ। Yeah. मैम इफ यू मीटिंग तो Okay. यदि आपने पंजाब का केस देखा होगा, पेप्सिको ने MOU साइन किया था फार्मर के साथ पोटैटो के लिए और आपका बेबी कॉर्न के लिए। आपको जान के ताज्जुब होगा, मंडी में वो प्राइस बिक रहा था 40 रुपीज और फार्मर से परचेज हो जाता 3 रुपए पर केजी। These are the legal fact. बहुत सारा केस स्टडी आपको अवेलेबल है। Yeah. Both either way it is possible. So it may be a high rate and low returns. So high returns, low rate. That तो also आपको possible. 2-3 चीज देखना है। जैसे हम लोग जो MOU साइन करते हैं फार्मर, when we are not forcing the clause you have to sell the output product to us only. If someone offering more than us, यदि हमने आपको काल में का प्राइस ऑफर किया 20 से 25 रुपए केजी या 30 रुपए केजी जो भी, इफ मार्केट में आपको कोई देने के लिए 40 रुपीज पर केजी देने को तैयार है, यू आर रेडी टू सेल टू देम। तो इस तरह का ओपन क्लॉज होना चाहिए MOU में कि जिसमें आप बाउंड ना हो कि नहीं पर्टिकुलर यू हैव टू सेल टू दिस कंपनी पर्टिकुलर दिस वॉल्यूम। तो इस तरह का क्लॉज उसमें आप देखें। और कोई भी MOU साइन करने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाने से पहले, कंसल्ट विथ योर लीगल टीम और लीगल एडवोकेट, उसका सब कुछ समझे, उसके बाद साइन करें। जैसे हम लोग भी कहते हैं कि कोई भी MOU साइन करने से पहले आप अच्छे से MOU को पढ़ें, समझें प्रॉब्लम को। यदि लगे कुछ क्लॉज को अमेंडमेंट करना है तो आप बैठ के अमेंडमेंट करें। ऐसा नहीं है कि वन वे होना चाहिए, क्योंकि फार्मर सेंट्रिक मॉडल होना जरूरी है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे भी कुछ मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट पड़े हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। So these are the best option for you to go refer the different model agreement developed by the government of India for the contract farming for the different commodity. Thank you so much. Wonderful input, sir. So, I mean, any other clauses that we need to add that we need to look at if they're not there from that side, but to protect interest as a farmer, are there any clauses that we should look into and add? The one is a price mechanism. If you see that if just like our company, we offers a 50% of planting material, cost of the planting material. You have to see that is the I'm charging you the in the buyback, I am charging the cost of seed or not. If someone is charging with interest rate or not. Sometimes what's happened, we give the advance to the different farmer and FPO. If they are not able to supply the material, we charge 15% as a rate of interest in terms of finance, because we have invested. Okay.
such amount field, then we need those raw material. So you have to also look at the matter of the pricing mechanism, what the price structure, what the term and condition, what the rate of interest in case you are not giving the material to that company. If you are charging interest, at what percent of interest they are charging? Is the 15% standard rate of interest or is compounded interest? You have to also look into the matter. Oh, thank you Yeah. so much. Thank you so much. Thank you. We'll go Wonderful, to the next wonderful. question. Yeah. Nitin, yeah, please. So I have one question. Maybe after Nitin, I'll ask. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Nitin. Yeah, I have few questions. I will try to make it quick. Yes, sir. Can you hear me, sir? Yeah. Yeah, I am hearing. Can you hear me? Yeah. Yes, sir. Yeah, thank you, sir. Gopal, sir. It was a wonderful presentation. Sir, my question is, among the MAPs, we have a union list for European countries. If we have to include these MAPs as food additives, so Yeah. which MAPs are approved or are included in the food additives? And the other question is, among the MAPs which are approved by European Union and other places to be used as herbs for medical treatment. Sir, all the herbs One are is listed regarding with the- food additives. Like say in case of moringa, what I found is it is not included in the union list. So if moringa, powdered moringa is to be used as a food additive, a lot of regulatory hurdles are there. So is somebody doing something about it? I just want to know Yeah, Krishna, which can other you have medicinal and something on aromatic, this? medicinal plants could be used as different country have different food norms. additives. Yeah. Approved different- food additives among MMPs. Have you finished your question now? Okay. Yes, Mr. Krishna, you can answer. Hello. Yeah, go बोलिए. ahead, Krishna. We have to check with the FSSI. They have a complete list of the food item which considered to be eatable. Few months back, the government of India has added hemp seed for the eatable purpose. So there are lots of new things is going to be added in the list of FSSI. For the export purpose, every country have their own policy for the adding the eatable herbs and for the medicine purpose. So I can't tell about what the European Union and UN are doing. USA are doing there. It's okay, sir. It's okay. One more quick question. This is a practical question. What intercropping you suggest for onion crop? Onion in Maharashtra? Onion. What intercropping we can take from among MPs? Onion plus which would be suitable or ideal as per your experience? Sir, first we have to or it trial has with not the been onion. tried out? It has been not tried by me and any organization right now. But if you want to do trial, then you can move for that. We will definitely support you for that. Okay. How about trying I with will get Tulsi? back to you. I have your contact. How about trying with Tulsi, trying with Safed Musli? So maybe such things We can be try explored. for that. Yeah. So should we start with the soil sampling first? Yeah, soil sampling is the best because option to go. That will be for the medicinal. logical way. No, if it is not tried out, then I will have to get the soil samples. Actually, my friend has a farm and predominantly he takes onion crops other than the sugarcane, whatever balance is there. So I was looking forward to trying that out. Intercropping. In fact, other way, so medicinal plants as a main crop and onion as intercrop. Sir, I am open to that, sir. I will have to convince somebody, or somebody has to give So me that way, their land. there are many options will be there. Yeah. Yeah, that I will way many get options back to are. you, sir. Thank you so much. Yeah, Sir, Prashad, we can take the we can do the trial and the ICR. Sir, will help us to develop some intercropping with the onion. Yeah. Right. All Thank possible. you. Yeah. Yeah, Prashad. Yeah, good afternoon, everyone.
Good afternoon. My question. Hello, am I Yeah, audible? Prashad. Yes, Yeah, yes. my question is, in a coastal region like Goa, what type of medicinal plants can be grown? And if not going to contract farming, what are the other modes of marketing or supplying raw materials? And second thing is, hemp production cultivation is legalized in Goa in India, or is there any restrictions still? These are my two questions. Yeah, Krishna. For the hemp, few states have their own policy. Like Uttarakhand have own policy for the hemp cultivation. Bihar, Jharkhand have no single policy regarding that. UP have a policy for, because if you see that it's come in the narcotics grade. So it's the quality counts on the CBD count, CBD percentage in the hemp. So according to that, different agent narcotics bureau have no proper framework on the hemp. So at present time, the Uttarakhand is cultivating hemp with the support of CSIR, because CSIR running some few projects, and the Uttarakhand government has given license to few of the startup company for the cultivation of hemp in the Uttarakhand. This is the present scenario of the hemp cultivation in India. We are also listening with the government of India for the not only the hemp cultivation, we are listening for the marijuana cultivation, because it belongs from the same family. US has developed their own framework for that. Industry have huge potential. They are ready to buy the marijuana products, leaf and the different leaf and oil. The lots of products they are ready to buy, but they are not getting from cultivation due to there is no proper framework given by the government of India and the state government. This is the scenario. Second thing about the for the marketing of medicinal and aromatic crop, best option is go with the contract farming after the learn from the company, because lots of farmer told me that no, I want to cultivate independently. So first thing, you need a lot of ecosystem, quality planting material, package and practice, post harvest management, who is the potential. By doing the contract farming, you can learn lots of things from the company, and after the getting learn, you can after 2-3 years you can sell your product to anybody who will give you the best of. These are the basic things what we are telling to the farmer. FPO, learn from by doing the contract farming. After that, you can move for the what you want to do. For the coastal region, there are lots of crop is cultivated in the Western Ghat region. You belong for the Western Ghat. Yeah, Western Ghat. Yeah. Yeah. The first thing is that you have to know what's the quality of the soil, what's the environment condition, and lots of you can also contact with the SMPB, State Medicinal Plant Board, because they have listed few crops for the your location for the Goa, or you may also contact with Regional Resource Facilitation Center of NMPB. Your center is in Pune University. You can also contact with them. There, according to the soil and the climatic condition, you can grow crop according to that. I'm not suggesting that you can grow this crop or that crop. This is not the proper way. First, what you need, which crop is easily cultivated in your land. According to that, you can plan the cultivation. For the market and everything, we are ready to help you. Okay. And also crop medicinal plants prioritization is also most important. Some can be taken up in the open market also. For example, ashwagandha, so there is open market already existing. Tulsi open market, it is now nowhere we can go for contract farming. And particularly when there is specific requirement of the company, then only you can go for example, organic Tulsi, organic ashwagandha you need. So for that, there is no open market. So in that way, you have to go for contract marketing only. So otherwise, some crops have been already already being sold from the APMCs. So you can look at the each site which is there in where you will get a lot of
products which have been sold online. So from there you can source it and sell the material through that. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah. Pooja madam. Yeah, sir, I like that concept of turmeric helping, being using it as a pest control thing in intercropping. So I just wanted to know what else we could use for as pest control. Like if I plant neem around the farm in the perimeter as a border crop, will it help, or are there any other plants like that which can help? We have done lots of trial on the turmeric. We have given the positive result. We have trial turmeric intercropping in Uttarakhand, UP, Bihar, Jharkhand, Bengal, Karnataka, in the western in Sirsi region of the Karnataka, Maharashtra also. We have seen that the turmeric gives the better result in terms of pest control, because if you see that you can plant neem on the border of the farm, but if you see the below the orchard, there is lots of space open. They are not utilizing. You can utilize by cultivation turmeric. The pest can it help you to decrease the pest because you have to regularly maintain the orchard. So turmeric will be literally like an intercrop, sir. I mean, one level, this one line, this one line, that like that. Yeah, in the orchard. Yeah. First thing, you have to select the variety, which variety is suitable for the orchard, because there are lots of variety which for the open cultivation, few variety which loves the orchard, which gives the better result, better production in the orchard. You have to select the variety. We have one variety called Kesari. If you want the seed, we can provide you the seed of 15 to 20 kg for the trial cultivation. So after that, doing the trial, you can expand your farm. You will get the better result in the orchard by cultivating turmeric. So turmeric will work with other medicinal plants also, sir, or is it only for with non-medicinal? It's only for the orchard, not for the other medicinal crop. If you are your field is for moringa cultivation for the pod, you can do intercropping turmeric as an intercropping for the pest control in the orchard, because that moringa is also comes as orchard. So mostly in the turmeric as an intercropping in the orchard, not with the different crop. We have not tried. If you want to try, you can try that, but you can also share what's the result you got, because it's also learning for us that lots of trial has been done by the farmer. We have to also learn from the farmer that they are doing this practice, and we adopt that practice. We use scientific method analysis for the practice of that farmer. After that, we come for the conclusion, no, this is also a package and practice developed by the farmer, which is also going to help in the cultivation of different commodities. Right. Thank you, sir. Yeah. Any other questions? Anybody has any questions to Mr. So likewise, neem Pongemania will also help, no? So in the border, if neem and Pongemania are alternated in the border, will they help in pest control to some? Hello. Yes, yeah, Krishna. Can you repeat the question? So like we said, neem may also help. So if there's an alternate between in the border cropping, if I do alternate of neem and Pongemania, will it be a good shield for pest control? I think no. No? No. Okay. Okay. So any other questions? Yes, sir. One more quick question. Nitin, yeah, please. Yeah, sir. Gopal, sir, what is the minimum size of land you require to enter into contract with your company? Is there any criteria, or you accept any size? It depends on the demand of the crop, demand of Krishna, demand of local availability, and all those things. Yeah. That's why I'm asking him as a thumb rule. I mean, what is right now? Actually, we categorize different crop on different price tag. Below the 50 is low value crop. We tried low value crop in the northern Gangetic Plain area, because the transportation cost is less, 3 to 4 rupees per kg. For the south, the transportation cost from the Tamil Nadu, Karnataka, it comes around 10 to 15 rupees per kg. So we promote high value crop
like ashwagandha, Sir, PPE. Maharashtra, consider Maharashtra region. I am from Maharashtra, so Okay. which is your high value crop for which you Ashwagandha, have some Shatavari, minimum Pipli, land requirement? Okay. ashwagandha. Do you have any minimum requirement for that? Yeah, it's for the ashwagandha, it's 30 acres because it's make a one lot. For the one Okay. cluster. I got If it there now. is- See, the problem is here, Nitin, I will answer logically here. If it is small number, Yeah, the yes. logistic cost will be very high. Correct, At correct. least we have No, to have I agree. one So, but truckload I of wanted to know the the material. Yeah. You Right, think sir, of right, one sir. I truck got it, I got it. generating one truckload of material, so that is your size. So then I have a question for somebody who's starting small like me, like maybe around 4-5 acres. How do No, I there should be a clusters. There should be a clusters. There. cluster? Yeah. Create a cluster. Yeah. So I was Otherwise, precisely no, looking for medicinal that. plant If it is business is not viable. सर बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप क्लस्टर में जाएं क्योंकि आप 10 एकड़ नहीं कर सकते क्योंकि यू हैव नॉट 10 एकड़ और 20 acres of land. What you can do 10 farmer, 20 farmer, half acre each. So Correct. this will make Correct, you correct, one correct. bunch of lot, and every farmer done trial Right. cultivation, it will give the positive response. So I get there is competition within the farmer that we have come with this much of productivity and this much quality. There is competition within the farmer. So it will help you to And take all the best package and practice adopt because different all the farmers. Yeah. Yes, sir. And all the farmers have to be having neighboring farms or same village and I mean distance separated farms. Are also Preferably fine. good within the limited perimeter. It will be good. Otherwise, no, you will get microclimatic Different variations qualities. will be there. Correct. No, I am saying from the same village is fine. Because Yeah, that's achieving, fine. agreement of 50, 100 people, who are neighboring, having neighboring land is not easy. So if the same village is considered, the agroclimatic conditions, I assume, Yeah, that should possibly be there. remain That should same. be there. Yeah. So separation of farms is allowed there. Yeah. Any other questions? Thank you, sir. Thank you. Okay, Krishna, thank you very much. So, anybody? Shivraj, any question? You have anything to say? जी सर इसमें सर लिंक नहीं सर होती है सर. Sorry? सर लिंक सर फीडबैक फॉर्म की सर. I'm not getting you. Sir, for the feedback, he is asking for the link. You No, can, we are not. We don't want anything. You write if a you want to mail now. She has, mail. Dr. Deepa has given a mail address. You write on that one. If you have anything to be shared with us. सर सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड होता है. Certificates we generally don't give. This is only a knowledge seminar. It is knowledge sharing, so we will not give you. This is only 1 or 2 hours. Say every fortnightly we will be organizing, so we will not be giving this. Okay. Kind of Otherwise, awareness any questions? Okay. So Deepa, you can go ahead quickly about MediHub. So share some new participants and other things. They'll get to know how MediHub is working and how they can help you. Yeah. Fine. It is in presentation mode and visible. Yes. Yeah, it is visible. Presentation mode, Lion. It is not there. Screen is visible, not in presentation mode. Not in present. I'm moving the slides in presentation mode. Check your connectivity. Okay, go ahead. Yeah. Now it has come. Go ahead. Connectivity was very low. I started with data card. So, okay, fine. So today to discuss on MediHub Technology Business Incubator, it is very much important to discuss this at the moment because the person which you were talking to is Mr. Krishna Gopal Singh, and he is our incubatee. Vishwaksena Hubs Private Limited is incubated at MediHub TBI for several reasons, and he is been taking help from MediHub TBI and been availing service of MediHub TBI more than 1 year. And as I'll discuss more into this, that we have several segments to look upon when we are entering into medicinal and aromatic plant business sector.
So first of all, we'll discuss my presentation flow, as in why to think upon MAPs for business enterprise when you're starting for something new or you are planning for diversification of your business maybe, and how incubation centers can support you into that matter, and what services actually MediHub TBI has to offer you or any incubator into that matter. First of all, if we all know that herbal medicines are solve the primary healthcare needs of about 80% of world's population, and herbal medicines are, and this whole herbal segment is very much trending these days. There is a into domestic and international market as well, and MAPs are not only important for healthcare system, but it is also important to boost economy and can impart a significant role in the economic development of the country. So to more insight into this segment, we can say that there are several ways of doing enterprise into these medicinal and aromatic plants, and there are so many good options to look upon. The first one is cultivation part. Sorry for the interruption. The first one is cultivation part, and to look next upon into that, as Sir Krishna Gopal sir has discussed, that there is a primary value addition, that is drying, sorting of the farm produce. The second one is secondary value addition into that, and many companies are doing very good into this. But to highlight some of them is herbal ice creams from Amul, and herbal milk into this segment. Herbal beverages are being introduced, and so many teas and so many different brews are coming into the market because people are getting aware, and the demand for medicinal and aromatic plants products is trending these days. And more into this is herbal chocolates are coming into the market to serve the demand. Herbal cosmetics, herbal nutraceuticals is trending. Recently, I was looking to the salmon, what do you call, the fish, cod liver fish oil tablets, and then I creatively I searched that any herbal option for that, and even I was able to get one herbal option, and they claim that it is more valuable than cod liver oil because it does not have all that different metal, heavy metal or something which fish carries, and it is always environmental friendly as well. So even talking to herbal nutraceuticals, many creative variants are available, and it is just a matter of fact that we need to look upon the various options and we need to search out for that. Herbal pesticides. Herbal pesticides are also trending because people are getting aware about herbal farm produce, and everything organic people are demanding. So for those organic demands, we need to serve the farmers with available pesticide into these herbal segments. And herbal baby products are trending these days. People are getting more aware even in these sections, and we are able to get herbal diapers as well. And herbal household cleaning products are also trending. Again, these are comparatively, these are heavy on pocket, and they what do you call, they are little pricey. Price matter has been matter of prices again need to be worked out, but household cleaning products are also available, and there is a good market for this. Next, to discuss that advantages of business incubator, how this business incubation center has been advantageous. First of all, it helps you to save on rent. If you are planning to start any business into this matter, first of all, it will help to save on rent. It will help to find fundings for you. It will help to link you to the government schemes which are available into these segments.
It will help you out to learn and grow with a like mind of people. It will network with you, the other kind of startups which are looking for more or less improved focus is seen here. And if we talk about MediHub TBI, the vision is to commercialize innovation and to bring startups in medicinal aromatic plants with best-in-class support system for the entrepreneurs. Moreover, if we see the incubation process, as any incubation center has this process that you come up with idea and you then think of a brainstorming for the idea. There are several inputs, comments on the feasibility and viability of the idea has been checked out, and then you are made aware of that what legal compliances you need to follow, that there is a big list, checklist you need to follow, and yes, at a certain point you are ready to hit to the market. The facilities which we can talk about MediHub TBI is we have requisite expertise available at our end in this medicinal aromatic plant segment. We propose to facilitate innovations to business ventures, and we promote medicinal aromatic plant segments with technology transfer. I mean, with technology transfer, we mean that any of the technologies available at our end, been patented by the scientists, is available for transfer with simple MOU. So even the incubation can be done with your idea or with the available and existing technology at our institute. We organize sensitization workshops and boot camps and company management seminars and webinars, one which we are doing right now. Certain more focused webinars can be done in the available requirements in the domain of medicinal plant segment. Certain services which I would like to discuss on MediHub TBI is first of all technology consultation. As I said that any compliances would be discussed and legal aspects, guidance would be given, registration and licensing. All these things are very much important when you are planning to start your business venture. Next is business consultation. Assistance with business plan and go-to-market strategies, backward and forward linkages is very much important to identify at the point when you are entering into the business of MABs. Main thing is mentoring and networking. If we talk, we are very good at that. And we are very good at networking our activities with requisite expertise, because if we talk about mentoring, we try to connect with mentor experts who have experience of more than 15 to 20 years plus, and moreover they have expertise into their domain area which can be utilized by the new business aspirant and budding entrepreneurs into this segment. If we talk about infra facilities available at MediHub TBI, actually we have a very good research and development lab, as it is government institution, and production lab scale production facilities are available for our activities. As you all know, plug and play office spaces and meeting room and seminar webinar rooms and other things are always available in activities into the benchmark fees. Access to funding is the key area which we are helping our activities to look upon, and we help them out to make business plan. We help them out to make pitch decks, any linkages to financial institution and government schemes, as I discussed, is the main key area where incubation centers can help incubatees. Again, knowledge sharing and incubatees have this advantage of using our expertise from our end, and they always can utilize our logos and all these things is the base of promotional activities which we do from our end for incubatees. Moreover, admission requirements at MediHub TBI are so much simplified, and it is not so complex. It is designed in such manner that application is very much simple. Your idea should be novel, and it should be related to medicinal plant segments in one or another way. Business proposal should be commercially feasible,
and any enterprise, industry association, research and development organization can be the part of MediHub TBI. You should have requisite amount of qualification and experience into this segment, and one should be free from legal aspects. Moreover, if we discuss process, as I said, that there is a simple Google form application submission is done, then internal screening and shortlisting, and committee assessment is done. Committee assessment is just for the sake that to know that your idea is matching with the research area or not, and we don't judge on other parameters, and final selection is done, and which has been communicated to the applicant, and onboarding process has been finished with a simple MOU between our institute and the applicant. Moreover, I can discuss that incubate's detail to show you some of the incubation stories which we have from our end. Is like we help Atri Products, and it is doing wonders in making some of the herbal cosmetic products. It has some Nutri-Mix available, which is ready to eat product, and now it wants to enter into the herbal car freshener segment, and that's the research task we given to MediHub, and we are hand-holding into that fashion. Bilvam Herbal is again into cosmetic and nutraceuticals. Sera Trust is doing wonders in crop diversification in Vanaparthi, Andhra Pradesh, and replicating those models into other villages of the same state. And as we have discussed, Vishwaksena Hub today, they are into contract farming, and Pharma Tech company is again into the veterinary herbal food supplements and veterinary herbal medicines, as herbal things is very much trending into our human food and human medicines and other things, but it is always again it is a trending sector into veterinary aspects as well. So we have many incubatees we are working with and handholding them and giving due support. This is our contact details. You can always reach out us at this given number and given email addresses. You can take a screenshot of this, and any of the inputs can be mailed us on this MediHub TBI for your feedback purposes as well, and for any queries for future purpose. So thank you for your patience listening, and any further queries, we are ready to any answer. questions on incubation and MediHub technology business incubator, so you can please raise your मैम questions. मैम एक बार फिर से कर दीजिए मैम, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए प्लीज. Can you do it again, Deepa? Share it again, the last slide. Yeah. So anybody, so like that, one can take institutional support. नमस्कार सर. हाँ हरीश, या सर मैं ज्यादा इंग्लिश नहीं जानता, मतलब आई डोंट नो इंग्लिश. हाँ बोलिए इंग्लिश नहीं तो इंग्लिश में हिंदी में बोलिए. तो सर मैं उत्तराखंड से हूँ. यस यस. तो मैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ग्रुप बना के लोगों को जानकारी देते रहता हूँ कृषि के बारे में. बाकी मेडिसिनल प्लांट हमारे यहाँ बहुत हैं, जैसे दारू हल्दी है, तेजपत्ता है, इस चीजें हरड़ है. बहुत है, आप तो लैंडमाइन के ऊपर बैठा है. तो ये मैं उत्तराखंड बागेश्वर से हूँ. अच्छा ठीक है. तो आपका सवाल क्या है? मेरा इधर है कि जैसे 10 पेड़ हमारे जो है दालचीनी के हैं, मार्केट और जो है लाइसेंस की समस्या की समस्या से ज्यादा मार्केटिंग नहीं हो पाती अधिक मात्रा में ना, तो काफी वन विभाग के इशू हैं इस तरह के. हाँ, आप कृष्णा गोपाल से मिलिए, उनका कांटेक्ट नंबर आप लीजिए, उनसे बात करिए, वो मार्केटिंग को आपको हेल्प करेगा. अच्छा, ऐसा है, बहुत सारा हमारा पास भी ग्रुप्स है, मेडिसिनल प्लांट्स का ग्रुप्स है, उसमें आपको ट्रेड कर सकते हैं. और मैं तो ई-सेरक बोल के एक एप्लीकेशन है, वो मोबाइल में डाउनलोड कीजिए. हाँ जी. तो अभी वो हिंदी में भी देख सकते हो. तो मैं फार्मर के साथ में हेम्योपैथिक डिपार्टमेंट में भी काम करता हूँ, MPW संविदा पे. ओके. तो हर क्या कहते हैं हॉस्पिटल के आसपास जो खाली जगह है वहाँ पर मेडिसिनल प्लांट भी लगने हैं.
हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा काम। अच्छा ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि उत्तराखंड में भी हर बिल्डिंग पे मेडिसिनल प्लांट लगाने का। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें ठीक है, इसीलिए उसके लिए कोई हमारा जरूरत होगा तो बताइएगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और बाकी कोई क्वेश्चन है? So anybody has any questions to Dr. Deepa? So you can avail the facility of MediHub. So it will tell you what to cultivate, how to cultivate, when to cultivate, where to cultivate, how to market, and what is the price. All those things, all your doubts will be cleared at MediHub Technology Business Incubator. And also you will be networked with all those entrepreneurs who are working in this field. Okay. Okay, thank you. Any questions? So Krishna Gopal, thank you very much. And Deepa, thank you very much for all that you have done today. Thank you, sir. Thank you very much, and stay connected. And you can share your mobile number in the chat box so that the people get to know. And there are many people from Bihar also there. Nandlal Ram is there. So this is not a thing. Okay. So thank you very much. Thank you all. We'll close the session for the day. Thank you. I think we can close it.